In a glittering event, MasterCard joined Confederation of All India Traders in recognizing and honoring traders and merchants who've successfully integrated digital solutions in their businesses. The event also witnessed MasterCard's global leadership addressing small merchants and traders through an interactive session on the power of digital solutions. Thank you, Praveen ji. आपके साथ ये 10 साल हमारी भागीदारी जो रही है, many of you I have met on many occasions. एंड ये एक मैं क्या बताऊं आपको, एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है हमारा आपके साथ, आपके साथियों के साथ. CIT is a very integral part of the economy. आप लोगों का जो रीच है, आप लोग भारत अगर महान बनना है और अगर महान है और आगे ये कमिंग दशक में अगर भारत को एक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, मेरे हिसाब से CIT is going to be a very integral part of that engagement model, and we are just delighted कि आपका leadership हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम लोग इतने काम कर रहे हैं एक साथ. Thank you, sir. Thank you very much. So at this point of time, I put myself towards Mr. Michael. I have few questions. Bring them on. So my first question is, how can small merchants continue to grow and compete in an increasingly digital world? Vis-a-vis the adoption and acceptance of digital technology in India. Of course, we are doing best day by day, but even then the proportion is not up to that extent to what the global world is. I think our partnership in the last decade comes right to the heart of your question. I think where we have come to is to show that Digital Bharat isn't a dream, it is very real. It's very real every day in your various businesses. It's very real in accepting digital payments. That was originally it, but none of you wake up in the morning and say, it's my desire to accept digital payments. Your desire is, I want to sell my goods in a better, more effective, faster way. I want to find new customers and run my business in a better way. And I think that is the opportunity for growth going forward. Digital payments is a building block, but it's never a means to an end. So what are we trying to do? Think about what you all need. What is the most thing that you all need other than customers? Is working capital. Manage your working capital, find ways of accessing credit. And I think the footprint of digital payments is an unlock for that. It's not the only answer. Of course, there's financial institutions and others needed, but together, we can make it so much easier for a bank to say, my merchant, my business, here's what I can stand for because you see it in my turnover. So I think that is, in fact, the biggest opportunity. My next question is, what are the global trends that offer the next big opportunity? Right. So the point on credit unlock is a big global question. I think India is on the forefront of so many things when it comes to building a digital economy. Think about what has been done with Aadhaar. One of the issues around unlocking credit growth is that do you really know who's at the other end of the transaction? Is that digital data footprint actually real? So I think digital identity as a building block to a better data trail is absolutely critical. With Aadhaar, with 1.3 billion identities, is unique in the world. We really need to work on is, I think in the near term, to make sure that your businesses run even better and we give you the tools. So cybersecurity, going online, data marketing, finding your next customers, those are all a little more near term than what is the next GBT solution, ChatGPT solution that we could bring to you. Yes, we might at some point in time, but I'm always thinking practical is better. I think there is a greater need to have an awareness and education program throughout India to make people understand why in next year or day after, the AI and ML is going to be the most important tool of conducting a business activity. Am I right? I think that's right. You were drawing the arc of time earlier, pre-COVID, during COVID, how the digital industry became so much more important. During COVID, it kept all of us going because there was nothing else possible. We were all locked up at home.
In a world like this, imagine there's a loss of trust because people say, I don't know where my data is going, or I've lost this payment, I can't get my money back, I sold to the wrong person, there was fraud involved, I don't know who that is, that other player that I'm doing business with a good actor or not. All of that can be solved with technology. And I think once you have trust in the system, the multiplier of 80 million plus another 100 million plus the 300 million, that all those humongous scale opportunities in India will really come to life. If you don't build trust into the system, you don't address cybersecurity, you don't address fraud, then I think scaling will be very hard. Ari, you have very closely seen the Indian market. And after Indian market, now you are very close to Asia Pacific market. So my one question to you would be, so what can small merchants do to benefit from digital commerce? And particularly I want to understand any learnings from Asia Pacific region. I will put certain things that India is doing. Mobile phone technology and the power of the mobile device, I can say in a very emphatic way, India is showing the world on how to power up smart applications. आप में से कई लोग यूज कर रहे होंगे खाता बुक, ई खाता, receipts, invoicing, inventory management, all of that can now be handled by a device as small as your phone. So the benefit, प्रवीण जी, कोई माइकल ने भी बोला कि कोई डिजिटाइजेशन नहीं करते कि भाई डिजिटाइजेशन इज वेरी एक्साइटिंग. You digitize because you're going to reach more consumers, you're going to sell more, आपकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी, आपको क्रेडिट मिलना है, and therefore expansion of business. So I really feel that this coming decade, just as we are sitting here and reflecting in the last 10 years, and knowing well, Praveen ji, how demanding you are, we are looking ahead to the next 10 years, and I really feel that this is a extremely Amrit Kal period we are all entering in India in the next phase of growth. And let's not forget, India is also going to be a leader in 5G connectivity. By the end of the next 2 years, you're going to have 5G connectivity going all the way down to 660,000 villages. You will have fiber broadband connectivity going right down to the interiors of India. All of this, hard infrastructure development, जो गडकरी जी कर रहे हैं, जो अश्विनी वैष्णव साहब कर रहे हैं, उसके साथ with digital infrastructure development can be a very powerful growth enabler. ये जो एक डिजिटल पेमेंट्स का एक वेव आया इन इंडिया ओवर द लास्ट 10-15 years, I think it has really benefited smaller merchants. So my first question would be to you, Gautam. I want to kick this off by asking you, what is your outlook on the future of digital commerce? And also tell us separately, what is MasterCard doing to really empower smaller merchants? लगभग पिछले 5 सालों के अंदर इंडिया के अंदर जो डिजिटल कॉमर्स है वो 15 से 16% पेनिट्रेशन था इंडिया में, वो आज 22-23% पे जा चुका है. और जैसे प्रवीण जी ने बोला पहले भी, और आज एक्चुअली वॉलमार्ट के सीईओ ने अनाउंसमेंट दिया कि इंडिया उनके लिए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटप्लेस बनने वाली है. राइट, इस साल उनका आंकड़े ये दिखा रहे हैं. दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर द कंट्री. राइट, और पिछले 3-4 सालों में जो चाहे वो ई कॉमर्स में हुआ हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स में हुआ हो, उसी के कारण हुआ है. सो वो उसका नज़रिया अगर देखें तो उस हिसाब से ये जो प्रोग्रेस है उसको अगर हमको आगे बढ़ाना है तो इस प्रोग्रेस को थोड़ा इंक्लूसिव होना पड़ेगा. अभी हमने बोला 8 करोड़ हमारे ट्रेडर भाई बहन यहाँ पे हैं, उसमें से सिर्फ लगभग 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के लगभग महिला ट्रेडर्स हैं. राइट, तो उस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा. महिलाएं जैसे हम देखते हैं इंडिया में हो या इंडिया के बाहर देखिए आप, वो बहुत दे आर प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट पुश टू स्मॉल ट्रेडर्स. राइट, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा. तो इस तरह जो हम मास्टरकार्ड जो प्रोडक्ट्स ला रहा है, जो प्रोग्राम्स ला रहा है, हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें महिलाओं के लिए या स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशरी होंगी. पहले हम क्योंकि पेमेंट्स करते थे, पेमेंट्स एक ऐसी चीज़ हम पिछले 50-55 साल से कर रहे हैं, तो हमारे लिए ईजी था कि हम डिजिटल पेमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दें. अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं. हम क्योंकि सरकार ने ONDC का जो प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है, इट विल बी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री. एंड अगर जो विजन है सरकार का, वो दुनिया का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म होगा जो इतना ओपन रहेगा फॉर डिजिटल कॉमर्स.
तो हमारी पार्टिसिपेशन सभी की पार्टिसिपेशन उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो उसमें हम प्ले करेंगे। बट हमारा मानना ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे और जो हम सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे उनकी एजुकेशन देनी भी बहुत ज़रूरी है। तो एज अ कंपनी हम जो 10 साल से CIIT के साथ करते आ रहे हैं अराउंड promoting the education of digital payments, we are going to expand that a little bit, right? We want to go to the education of just digitization broadly, right? Not just around payments. Fantastic. You know, I think what you mentioned, financial inclusion के बारे में, I think that's very important. And picking up on that point, पूर्णिमा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है. So I think आपका काफ़ी बड़ा योगदान रहा, you know, in terms of when we talk about rural women entrepreneurs, you know, आपने वहाँ जाके actually उनको जागरूक किया digital payments के बारे में. कैसा रहा आपका experience, पहले तो ये बताइए, और आपको ये idea कहाँ से आया, you know, what was the motivation behind it, और कौन सी challenges को आपने face किया, you know, इस दौरान? ये बहुत ही बढ़िया और सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है जो मेरे दिल से कनेक्ट है। मैं महाराष्ट्र में 7 लाख से भी ज़्यादा घरेलू महिला व्यापारियों को हैंडल करती हूँ, और मेरी जो फोरम है द लीफ ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, उसी के माध्यम से मैं ये काम कर रही हूँ। बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट में हूँ 2008 से, और उसी टाइम से मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसी माध्यम से अब तक मैंने 10,000 प्लस वुमन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए हैं महाराष्ट्र में, और वैसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। कैट जो फोरम है ना, ये आकाशवाणी है। जब भी उस प्रोग्राम में जाओ, कुछ ना कुछ नया भविष्य में क्या होने वाला है वो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है। अगर कोई ध्यान से अगर सुनता है और उसी प्रोग्राम से कोई सीख कर जाता है, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं वो उस प्रोग्राम में समझ में आता है। और उसी तरह से 2016 में मुंबई में मास्टर वीज़ा कार्ड का प्रोग्राम हुआ था। सर पता है आपको, मतलब उसी समय अनाउंसमेंट हुआ था और उसी प्रोग्राम में पता चल रहा था कि आगे जाके हमें डिजिटली होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ, और वो महिला व्यापारी हमेशा एग्जीबिशंस में ही अपना व्यापार करती है। कभी भी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि सडनली हमें डिजिटल होना पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन में ये बहुत हम लोगों ने सीखा, और आज बहुत महिला व्यापार में है और डिजिटली काम कर रही है। और 2016 में जो मास्टर वीज़ा कार्ड का प्रोग्राम हुआ था, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम हमारे लिए कंडक्ट किया और भारत में पहली बार आपने लेकर आया, तो उसी लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर ये डिजिटल फॉर्मेशन नहीं होता तो महिला व्यापारी आगे नहीं बढ़ती। आज घर से ही व्यापार हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, और जो लेन देन है वो बहुत काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। वंडरफुल। एंड आई थिंक जो आपने बोला अवेयरनेस के बारे में, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवीण जी, यू नो, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, CIIT इज़ अ लीडर, यू नो, स्पेशली फॉर स्मॉल मर्चेंट्स, और जैसे कि पूर्णिमा जी ने बोला आकाशवाणी। सो मुझे आपसे पूछना था कि बिकॉज यू नो ज़्यादातर अ लॉट ऑफ कंपनीज, यू नो, उनको शायद पता नहीं होता हाउ टू रियली लेवरेज डिजिटल कॉमर्स। तो आपके हिसाब से, यू नो, कौन सी क्षेत्रों में, यू नो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है फॉर स्मॉलर मर्चेंट्स, सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो एक बात तो हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी कि आज के बाद यदि हमें व्यापार करना है तो वो 4 चीज़ें कौन सी ज़रूरी हैं जो हमें अडॉप्ट करनी ही पड़ेंगी। तो वो 4 चीज़ें हैं: अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स। अगर इन चारों वर्टिकल में से एक भी चीज़ नहीं है तो हम भविष्य में आगे चल करके व्यापार नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों को इस बात को समझना होगा। और ये चारों की चारों चीज़ें यदि ड्रिवन होती हैं तो ये डिजिटलाइज सिस्टम से होंगी। तो इन टोटलिटी अगर देखें तो यदि मुझे भविष्य में व्यापार करना है तो मुझे डिजिटल टेक्नोलॉजी को तो अपने बिजनेस के अंदर लाना ही होगा। अगर मैं ले आऊँगा तो मैं व्यापार में रहूँगा, मैं नहीं लाऊँगा तो जो लेकर के आया, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे वो मेरा छोटा व्यापारी हो, वो व्यापार में रहेगा। और अगर जैसा आपने पूछा कि अगर हम इसको एकदम ऐसे कौन से सेक्टर है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो डेली कंज्यूमेबल्स है, FMCG है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, गिफ्ट आइटम्स है,
हम आए दिन, अभी हमारे यहाँ बैंक्वेट के बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब बैंक्वेटिंग है, अभी सब लोग डिजिटल सिस्टम पर चले गए। अभी यदि आप देखें तो हम सबके घरों में पहले जो मेड काम करती थी, हम सब उसको कैश पैसे दिया करते थे। आज मेरे ख्याल से हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोग डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं। और ये आदत हमें पड़ी कोविड से। कोविड में जब पैसे को ये लगता था कि पैसा भी एक वायरस है, वो गौतम जी से चल करके आया, और गौतम जी भगवान ना करे अगर तो कहीं किसी भी इन्फेक्शन से है तो वो ट्रांसमिट मुझे होगा, तो लोगों ने करेंसी को हाथ लगाना बंद कर दिया। तो कई मायने में हमको सोचना होगा कि जिस टेक्नोलॉजी की बात या जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ले जाना चाहते हैं, जितनी बात हम लोग G20 में कर रहे हैं, अभी G20 पहले शायद कुछ कम लोगों को पता था, आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को G20 के बारे में पता लग गया। तो ये पता क्यों लगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी है। फैंटास्टिक। सुरेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जैसे कि हमने सुना कि आपने कोविड के कठिन समय के दौरान झारखंड में एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जाके डेली फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, वहाँ के लोगों को डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बताया। सो ऑफ कोर्स मुझे डेफिनेटली जानना है आपकी एक्सपीरियंस के बारे में, बट ऑल्सो जब हम ये रिमोट एरियाज़ के बारे में बात करते हैं, ये जो नीश कम्युनिटीज़ है उनसे बात करते हैं, ये जो नए टेक्नोलॉजीज़ है, डिजिटल कॉमर्स है, डिजिटल पेमेंट है, तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाना चाहिए टू रियली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स टू देम? आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द वे? तो हमने जब अपने शोरूम में मशीन्स, पहले तो सब कैश में बिजनेस था, फिर बाद में जब हमने स्वैप मशीन और ये सब रखना स्टार्ट किया तो मेरा बिजनेस तो बढ़ा भी और सेफ भी हो गया, क्योंकि बहुत रिस्क हमको उठाना पड़ता था कि बैंक जाओ, पैसा कैश लेके, कहीं ना कहीं कुछ घटना हो जाए, पूरे ट्रांजैक्शन नहीं मिलते थे। अब डिजिटलाइजेशन होने से पूरे ट्रांजैक्शन मिलते हैं हमको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरा व्यापार बढ़िया से चल रहा है, मेरे स्टाफ बढ़िया से कर रहे हैं, हम पूरा देख लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमने बहुत कोशिश किया। फिर जब 2013 में हम लोग की जो मीटिंग कैट की यहाँ हुई थी, जहाँ वहाँ डिजिटल के बारे में बताया गया, जैसा कि पूर्णिमा जी ने आकाशवाणी बताया था, तो बहुत लोग को हम जब मैं बोला तो बोला बेकार है सब क्या कर, लेकिन जब आने लगा धीरे धीरे तब लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, ये इसको अडॉप्ट करने से बिजनेस जरूर बढ़ेगा। तो वहाँ की जब DM और SDM कलेक्टर दोनों मैडम थी, उनसे मैंने बात किया कि इस तरह से अगर हम लोग कर सके, और इधर से सेंट्रल गवर्नमेंट से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी थोड़ा सा प्रेशर था कि, तो हमने बाज़ारों को, जो जमशेदपुर में 2 बाज़ार है, आप बिष्टुपुर जमशेदपुर, हार्ट ऑफ जमशेदपुर, उनको मैंने चुना और उनको मैं पर्सनली वहाँ के SDM के साथ निकल के, मतलब 15 दिन के अंदर ये 2 बाज़ार आप कभी भी जाके विजिट कर लीजिए, 100% डिजिटल है। गोलगप्पा वाला बोलिए, पान वाला बोलिए, सैलून बोलिए, फ्रूट जो रेडी जो फ्रूट का है वो बोलिए, चाय वाला बोलिए, सब, और चाहे बड़ा दुकानदार हो, टोटल डिजिटल है। आप कभी भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। वंडरफुल। और रूरल के लोग को डिजिटल अपनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि वो लोग नहीं जानता, लेकिन वो हम लोग से ज़्यादा समझदार है। वो आते हैं ना, तो हम लोग बोला ठीक है भैया कितना हुआ, तो 5000 रुपया, तो ठीक है काट दिया स्वैप करके, तो नंबर बनाया, तो ऐसे करके नंबर, अगर UPI करना है तो देखा तो 1 रुपया पहले भेज देगा कि देखिए 1 रुपया आ गया ना आपका, हाँ तो ठीक है। वो जब वो श्योर हो गया कि नहीं सही अकाउंट में, तब जाके बैलेंस पेमेंट है। तो उनका एजुकेशन है, तो रिमोट एरिया में एजुकेशन होने से और नेट का प्रॉब्लम नहीं होने से वो लोग वेल एजुकेटेड है कि डिजिटल अपनाने में। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि डिजिटल अपनाने से निश्चित रूप से व्यापार दिन दुगनी के हिसाब से बढ़ेगा। All the very best and more power to everybody on this panel. I think, बहुत सारे insightful takeaways and observations rahe. So thank you so much. It was a pleasure. Thank you, everybody. That's a wrap on the event, which celebrated a decade-long partnership between CAIT and MasterCard for digital empowerment of small merchants and traders. Held on the back of International Women's Day, it also highlighted achievements of women business owners and entrepreneurs who've adopted digital. So, there is no better time than now to start your digital journey.